Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 6, The Junk Seller. Let's continue our further exercise. One is showing the cost price, then it's a selling price, then gain or loss and amount. Okay, so here are the 5 columns are given. The first is an item, that is head. Now, everyone clear? This cost price means buying price. Okay, so head cost price is rupees 38 यानी हेड को खरीदा 38 रुपीज में, सेल किया 60 रुपीज में. सो व्हाट विल बी हैपन? गेन होगा या लॉस होगा? गेन मीन्स प्रॉफिट. ओके, बट हियर द वर्ड प्रॉफिट इज नॉट गिवन एंड द गिवन गेन. सो हियर वी हैव टू राइट द गेन इफ इट इज गेन इज डन. ओके, तो यहाँ पे 38 में जो चीज खरीदी है हमने 60 रुपीज में सेल की है, यानी 60 इज ए ग्रेटर नंबर देन 38. दैट मीन्स हमें क्या होगा? गेन होगा. व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस we get the gain. So here we have to write the gain. GAIN, gain. Here the profit word is not given, so you must write here gain, right? Okay, here we have to find the amount of gain. हमें यहाँ पे gain का amount find करना है. So how can you find it? So whenever you find the amount of gain or loss, you have to do the subtraction from bigger number, right? So bigger number is 60 and smaller number is 38. So हमें subtraction करेंगे, 60 minus 38 करेंगे. So we get the gain amount, right? If the selling price is more, definitely we get the gain, and the selling price is less than the cost price, we get the loss, right? So 60 minus 38 कैसे करेंगे? So you can do in this rough area, okay, rough page. 0, just now I am doing here. 0 minus 8 is not possible, so we borrow it. This becomes 5. 10 minus 8 is 2, and 5 minus 3 is 2. So what answer has come? 22. So this is in money. So I will write here rupees, rupees 22. So here I get the 22 rupees gain. अंडरस्टूड दिस? हमें यहाँ पे 22 रुपीज का गेन होता है. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन, अम्ब्रेला. अम्ब्रेला प्राइस इज रुपीज 215 and the selling price is 225. So what will be happen? Gain or loss? So students, here 215 is the cost price and 225 is the selling price. So selling price is more than cost price, right? So we get the gain. Selling price जब ज्यादा होता है तो हमें gain means profit होता है. अब हमें प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 225 में से 215 को माइनस करेंगे तो हमें गेन मिलेगा. सो लेट्स डू हियर 225 माइनस 215. आप ऐसे अरेंज करके फाइंड करोगे, यू कैन गेट डायरेक्टली ऑल्सो. 225 में से 15 जाएगा, योर आंसर विल कम 10. So answer is rupees 10. Okay, so 10 rupees का gain होगा when we sell the umbrella. Are you clear this? Okay, next one is ball. Ball cost price is 18 rupees and the selling price is 16 rupees. मैंने बॉल खरीदा 18 रुपीज में और सेल किया 16 रुपीज में. सो नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन, गेन और लॉस? तो हियर 18 रुपीज की जो बॉल है वो मैं 16 में सेल कर रही हूँ, यानी 18 से छोटा नंबर है ना 16, तो क्या होगा? लॉस होगा. समझ में आया? तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? LOSS, लॉस. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द लॉस अमाउंट. कितने रुपीज का लॉस हुआ वो फाइंड करना है. सो लॉस फाइंड करना हो या प्रॉफिट फाइंड करना हो, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर नंबर. 18 में से 16 को माइनस करना है, ठीक है? बिगर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है. सो 18 minus 16 करेंगे, आंसर कम्स 2. Here we have to write the rupees also because the money is always in rupees. So rupees 2 का loss हो रहा है when I sell the ball. Everyone clear this? Okay, next one is earring. What is the price of earring? Rupees 55 and the selling price is 53. यानी buying price 55 है और selling price 53 है. So what will happen? Gain or loss? So everyone clear? Cost price is 55 and the selling price is 53. That means 53 is a smaller number than 55, right? That means selling price कम है. तो यहाँ पे हमें selling price जब भी कम हो रहा है तो हमें क्या होता है? Loss होता है. ठीक है? So here you have to write the loss. Okay? अब लॉस कैसे फाइंड करना है? जैसे प्रॉफिट फाइंड करना है वैसे ही करना है, बट आपको बिगर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है. यानी 55 में से 53 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रॉफिट फाइंड करना हो या लॉस फाइंड करना हो, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बट बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को. ठीक है? तो 2 आया तो रुपीज 2 का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ठीक है? everyone clear this, how to complete the gain and loss and how to find the gain and loss amount? Okay, so let's see the next exercise. So next exercise is fill in the blanks. So here this exercise is very easy also, this blank is also very easy.
When you do the multiplication with the zero number, you get the answer very quickly. 24 मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है. सो कैसे करेंगे? यू डोंट हैव टू अरेंज द नंबर एंड डू ऑल दैट. ओके, मल्टीप्लाई 100 10,000, सो यू गेट द आंसर इमीडिएटली. सो 24 वन सा क्या होगा? 24. ओके, एंड हाउ मेनी zeros आफ्टर इट? 2. So that we have to put after the 24. So what answer has come? 2400. You can read 2400 also. Understood? तो easy है ना multiplications. Next one, 721 multiply 10. So how can you get the answer? So 721 multiply 1 करेंगे, so 721. And how many zeros? 1 only. So I put after it. So the answer comes 7210. Students, you must read the number properly. अगर आपने 7210 read किया, that will be wrong. You have to read the number as per the places, right? Take care of this. Try to read the number frequently. अच्छे से read करना सीखिए. Next one, 126 multiply dash is equal to 1260. तो हमें यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो दिया है that is आंसर, बट हियर वन नंबर इज मिसिंग. सो व्हाट शुड बी देयर? क्या हो सकता है वहाँ पे? तो आप देख सकते हो 126 है, यहाँ पे भी 126 है, बट हियर 1 0 इज मोर. सो दैट मीन्स हियर द मल्टीप्लीकेशन विद द 10, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें आंसर आएगा 1260, राइट? जीरो आएगा ना, 1 0 है तो 10 ही आएगा ना. अगर यहाँ पे 2 0 होता तो हम यहाँ पे 100 लिखते, 3 0 होता तो हम यहाँ पे 1000 लिखते. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वन, 264 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 264. इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो हमारा आंसर है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेशन आंसर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. 264 हियर आल्सो 264. सो व्हाट नंबर शुड बी हियर? यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए? सो हमें सेम आंसर मिलता हो तो आंसर क्या होगा? 1. 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर सेम मिलता है ना, नंबर सेम रहता है ना. ओके, तो आंसर में क्या आएगा? 1. ओके, तो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज बेस्ड ब्लैंक्स. ओके, next one is 7300 multiply 0. So everyone knows that when we multiply any number with the 0, what answer should come? अगर 4 मल्टीप्लाई 0 करो, 5 मल्टीप्लाई 0 करो, 1 लाख मल्टीप्लाई 0 करो, एनी डिजिट नंबर यू मल्टीप्लाई विद द 0, आंसर कम्स ओनली 0. ओके, इन द मल्टीप्लिकेशंस. एडिशंस के रूल अलग है, सब्ट्रैक्शन के अलग है, और मल्टीप्लिकेशंस के अलग है, डिवीजन का अलग है. तो मल्टीप्लाई का रूल्स आए, जब भी मल्टीप्लाई 0 करो आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, सबको मैशअप नहीं करना है. नाउ 931 मल्टीप्लाई 1. अगर 931 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही नंबर रहेगा, 931. Clear this? Everyone understood? Next one, 12 multiply dash is equal to 12,000. तो क्या होगा? यहाँ पे कितने जीरो है? दोनों 12 है और यहाँ पे जीरो कितने हैं? 3. तो हम क्या करेंगे? 1 के पीछे 1 2 एंड 3 जीरो लगाए तो कौन सा नंबर बन गया? 1000. ओनली जीरो मत लगाना, आगे 1 लगाना. ठीक है, अगर जीरो लगाओगे तो यहाँ आंसर जीरो है और आपका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा. ये जीरो से मल्टीप्लीकेशन तो जीरो आता है ना आंसर, तो ध्यान रखना है. 1 के पीछे यहाँ पे जितने जीरो वो लगाओ, दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, आंसर कम्स 12,000. Everyone understood? Now next one, we have discussed all this, right? Now let's see the second last blank. 30 multiply 50 is equal to dash multiply 30. Okay, so here one number is missing. So what number should be here? क्या आएगा? So this is based on order property. ये जो blank है वो order property पे. Order property यानी क्या? I am giving the simple example. 3 multiply 2. Okay, the answer comes 6. 3 multiply 2 is equal to 6. Okay, then when we change the order, अगर 3 की जगह में 2 लिख दूँ और 2 की जगह में 3 लिख दूँ, तो 2 multiply 3 करेंगे, then also answer comes 6. That means when we change the order of the number, then we say get the same answer. Okay, the same way here 30 multiply 50 करेंगे, so we get the answer 1500 is equal to what number should be here, so we get the same answer. is equal to का मतलब होता है left hand side and RHS LHS and RHS and left hand side and right hand side दोनों equal होती है. like this है, अगर मैं 3 multiply 2 करूँ is equal to 2 multiply 3 करूँ, both should be same. 3 multiply 2 then 2 multiply 3, both should be same. The same way here 30 multiply 50 करूँ या तो 50 multiply 30 करूँ, यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 50. 30 दोनों साइड है, 50 एक ही साइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 50. यानी अगर 30 पहले है तो यहाँ पे मैं 30 को बाद में लिखूंगी, यहाँ 50 बाद में है तो 50 को पहले लिखूंगी. आई चेंज द ऑर्डर सो आई गेट द answer. So this is called an order property of multiplication. We can say commutative property also.
Now next one is 2100 multiply 14 is equal to 14 multiply what? So 2100 multiply 14 करेंगे तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई कौन सा नंबर करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, 14 14 दोनों साइड है, ओके, बट यहाँ पे 2100 नहीं है, सो व्हाट आंसर शुड बी हियर 2100. आर यू क्लियर दिस? समझ में आया? तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आपको देखना है कि इज इक्वल टू का मतलब है दोनों साइड सेम नंबर होने चाहिए, बट चेंज द ऑर्डर, फर्स्ट वाला सेकंड लिखेंगे, सेकंड वाला फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, ओके क्लियर. नाउ व्हाट इज हियर, सॉल्व द फॉलोइंग नंबर स्टोरीज. अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ स्पॉटलाइट से, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग नंबर स्टोरीज, ठीक है. हमें यहाँ पे नंबर स्टोरी कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है कि नंबर स्टोरी जब भी होता है आपको उसको स्टेटमेंट के साथ लिखनी होती है, ठीक है. यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखे हैं वैसे हर एक नंबर के सामने उसका स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है. सो फर्स्ट वी रीड द फर्स्ट स्टोरी. So there are 350 trophies in a box. How many trophies are there in 4 such boxes? ओके, सो एक बॉक्स में, इन अ बॉक्स का मतलब होता है वन बॉक्स में, वन बॉक्स में 350 टॉफीज है, तो ऐसे 4 बॉक्स में कितनी टॉफीज होगी, यानी टोटल कितनी, टोटल फाइंड करना है. तो आप बोलोगे कि मैडम हम एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें एडिशन नहीं करना है, ओके, वाई, बिकॉज अगर हम 350 प्लस 350 प्लस 350 प्लस 350 4 टाइम्स करेंगे, ओके, इससे बेटर हम क्या करेंगे 350 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ठीक है. सो वी गेट द आंसर इजी वे से, इजीली मिल जाएगा ना, ओके. तो जब आपको यहाँ पे भी टोटल ही फाइंड करना है, आप एडिशन से भी टोटल फाइंड कर सकते हो, बट एडिशन कब करना है, जब आपके पास नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, बट यहाँ पे आपको एक ही नंबर को बार बार ऐड करना है, इसे कहेंगे रिपीटेड एडिशन. दैट मीन्स आपको रिपीटेड एडिशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन. जब भी आपको एक ही नंबर बार बार ऐड करना हो टोटल फाइंड करने के लिए, तो आपको एडिशन नहीं करके आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन. याद रहेगा, टोटल हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एडिशन से भी मल्टीप्लाई से भी, और अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट नंबर है तो हम एडिशन से फाइंड करेंगे, अगर सेम नंबर है तो हम मल्टीप्लीकेशन से फाइंड करेंगे टोटल, ठीक है. ओके, सो 350 क्या है, नंबर ऑफ टॉफीज, ओके. तो यहाँ पे देखा ना कि 350 टॉफीज इन अ बॉक्स, दैट इज शोइंग नंबर ऑफ टॉफीज. नाउ व्हाट इज 4, मल्टीप्लाई 4 किया तो आपने देखा 4 मैंने वंस वाली प्लेस पे लिखा है, ठीक है, आपको ध्यान से लिखना है. 4 इज नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना वही उसके सामने लिखना है. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 5 20, 0 2 इज कैरी ओवर, 4 3 12 प्लस 2 14, 14 इज द टोटल टॉफीज. समझ में आया आपको? तो उसके बाद हमें लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना है, ये तीनों नंबर के बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें क्लास फाइनल स्टेटमेंट लिखना है. तो फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आपका जो क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी टॉफीज आर देयर इन 4 सच बॉक्सेस, उसके ऊपर से ही लिखेंगे. So there are 1400 toffees in 4 boxes. So students, this time when you have, okay, next वाला क्या है students? A rose plant contains 7 roses. If there are 205 such plants in a rose garden, then how many roses are there in the garden? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, रोज, अ रोज प्लांट का मतलब होता है एक रोज प्लांट जिसमें कितने रोजेस है, 7. इफ देर आर 205 सच प्लांट, ऐसे 205 प्लांट्स है रोज गार्डन में, देन हाउ मेनी रोजेज आर देयर, तो कितने रोजेज हो गए, एक प्लांट में 7 तो 205 में कितने हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 205 मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, ठीक है. समझ में आया? ओके, सो व्हाट इज 205, 205 क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन, ठीक है. यहाँ पे लिखा है 205 सच प्लांट्स इन द गार्डन, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन. देन व्हाट इज 7, 7 इज नंबर ऑफ रोजेस, 7 क्या है, नंबर ऑफ रोजेस है, ठीक है. नाउ उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 5 35, 5 3 इज कैरी ओवर. नाउ 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हो ना 7 को 0 से मल्टीप्लाई, 7 जीरो जा 0 होगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 रहेगा, बट यू मस्ट ऐड द कैरी ओवर नंबर, तो उसमें कैरी ओवर नंबर को ऐड करना है, सो 3 ऐड करेंगे, 0 प्लस 3 इज 3, देन 7 2s are 14, so answer comes 1435, so that is the total roses, ठीक है. So there are 1435 roses in the garden. समझ में आया? तो हमने देखा ना कि हर एक नंबर के सामने मैंने स्टेटमेंट लिखी है एज वेल एज मैंने फाइनल स्टेटमेंट भी लिखी है. अब आप देखोगे फाइनल स्टेटमेंट कहाँ से लिखी, तो यहाँ पे लिखा है ना हाउ मेनी रोजेज आर देयर इन द गार्डन, तो हम यहाँ पे उसको लिखेंगे देयर आर 1435 रोजेज इन द गार्डन.
आपको नंबर्स रीडिंग में ध्यान रखना है, 1435 आपको रीड नहीं करना है। कैसे करना है? 1435। अंडरस्टूड हाउ टू रीड द नंबर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन वाला क्या है? हाउ मच विल इट कॉस्ट टू परचेज 20 कैलकुलेटर इफ ईच कॉस्ट ₹235? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि व्हाट इज रिटन हियर, ईच कॉस्ट ₹235 का मतलब होता है कि एक कैलकुलेटर का कॉस्ट 235 है। तो अगर 20 कैलकुलेटर परचेज करने होंगे, खरीदने होंगे, तो कितना कॉस्ट होगा? तो हम क्या करेंगे, वन कॉस्ट का वन कैलकुलेटर का 235, तो 20 का कितना होगा? तो 230 मल्टीप्लाई 20 करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? राइट। सो व्हाट इज 235? हियर आई हैव नॉट रिटन एनी स्टेटमेंट। सो व्हाट इज 235? 235 क्या है? द कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर, कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर, राइट। व्हाट इज 20? 20 क्या है? नंबर ऑफ कैलकुलेटर। ईच कैलकुलेटर का मतलब समझ में आया ना? एक कैलकुलेटर का कॉस्ट 235 है, तो 20 का कितना होगा? तो 20 इज द नंबर ऑफ कैलकुलेटर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट यू विल डू बाय ओन, ठीक है। ओके, देन लास्ट आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर, राइट। समझ में आया? और फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हाट फाइनल स्टेटमेंट? सो टोटल कॉस्ट ऑफ 20 कैलकुलेटर इज, आपका जो आंसर आया वो लिख देना है, ठीक है। और कॉस्ट किस में होता है? रुपीज में, तो आपको रुपीज के साथ उसका नंबर जो है वो लिखना है। Are you clear how to solve the story sums and what thing has to take care while doing the story sums? एक तो साइन रखने का भूलना नहीं है, एज वेल एज हर एक नंबर क्या प्रेजेंट कर रहा है उसके सामने लिखना है। ओके, यू कैन राइट लिटिल बिट योर ओन वर्ड ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्टली यू मस्ट राइट, बट आपको अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। ओके, और लास्ट स्टेटमेंट लिखना भी भूलना नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स हाउ टू डू इट?